Yes, students, in last class we have studied about arthropoda and we have seen that means there are the jointed appendages and exoskeleton made up of chitin, and we can say body is divided into head, thorax and neck. Okay, and also we have seen that the Malpighian tubule for excretion. Now today we have to study about the mollusca. Mollusca is the second largest phylum of animal kingdom. First largest कौन सा था? Arthropoda, and second largest is a mollusca. And this mollusca is known as, we can say, soft animals and also known as celled animals. Also known as celled animals. Cells mean exoskeleton of cell. Okay. If you have seen that means वो जो शंख होता है वो देखा हो तो that actually a exoskeleton of a member of mollusca. Okay. So they are the very soft animal. जैसे आप ये मानो जैसे मोमोज होता है, मोमोज के ऊपर एक हार्ड कवरिंग लगा दे तो वो मोमोज जो है एग्जैक्ट दैट सॉफ्ट स्ट्रक्चर इज लाइक द एनिमल बिलोंग टू द मोलस्का. सो ओके, सो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सॉफ्ट एनिमल है और सेल्ड एनिमल है. दिस सेल कैन बी एक्सो, दैट मीन्स आउटसाइड प्रेजेंट हो, वी कैन से एक्सो सेल हो सकती है. इट कैन बी इंटरनल और इट कैन बी एब्सेंट. जैसे एक एग्जांपल है पाइला, उसमें ये बाहर होती है. और वी ऑल्सो कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्नेल. अगर हम इंटरनल की बात करें तो एक सीपिया होता है, उसके अंदर इंटरनल है. अगर हम एब्सेंट की बात करें तो वो है दैट इज ए ऑक्टोपस. ओके, सो वी हैव टू टॉक ओनली अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी जनरल कैरेक्टर द मोलस्का आर विद द सेल, ओके, present outside of their body. So second largest phylum है, soft animal है and shell है in the form of exoskeleton. This could be outside और exo, internal हो सकती है, absent हो सकती है. Exo in case of phyla, internal in case of sepia and absent in case of octopus. Okay, now come to the general characteristics. These are the all characteristics. Just we have to revise again and again. No need to change in any character. So habitat both है, that means aquatic as well as a terrestrial. If we talk about symmetry, then here symmetry is a bilateral. Symmetry is a bilateral. Then germ layer, triploblastic. Then xylem, true xylem present. Then digestive system again complete. Circulatory system present, but here the system is a open type. If you remember, the closed circulatory system present in Annelida, then in Arthropoda open था, यहाँ भी क्या है, open है. अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है थ्रू गिल्स. और एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हियर किडनी लाइक वी कैन से, और किडनी प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन. ओके, इफ यू टॉक अबाउट सेक्सिस तो सेक्सिस जनरली क्या है, ये यूनिसेक्सुअल है एंड फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी है एंड एक्सटर्नल भी है एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट भी है एंड इनडायरेक्ट भी है. इनडायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेज. इनडायरेक्ट मीन लार्वल stage. So here nothing new in these characters. These are the simple characters. So now we have to discuss about the body form. Now the body of mollusk is unsegmented. Unsegmented means the body is not divided into different segments as we have seen in Annelida. जो क्या थे, सेगमेंट्स थे, मेटामियस थे. इन आर्थ्रोपोडा we have seen head,
thorax and abdomen. Okay, but in case of mollusca, body is unsegmented. Segmented mean the body is divided into different segment internally as well as एक्सटर्नली, यानी कि जो सेगमेंट है वो बॉडी के बाहर और अंदर दोनों तरफ से हो। जैसे हमारा हेड अलग है, नेक अलग है, देन एब्डोमिनल थोरेसिक पार्ट अलग है, तो इसमें ऐसा नहीं है। बट हियर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। वन इज नोन एज हेड, अनदर इज नोन एज मस्कुलर फुट, एंड थर्ड इज नोन एज विसरल हम्प। ओके, हेड वही हेड होगा जिसमें क्या हो सकती है, माउथ है, आईज है एंड टेंटिकल्स होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट फुट, दीज आर द ओनली मस्कुलर फुट, दैट मीन फुट लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, सूडोपोडिया जैसा। एंड हियर दीज मस्कुलर फुट आर फॉर मूवमेंट। इफ यू टॉक अबाउट विसरल हम्प, ये विसरल वर्ड आया विसरल ऑर्गन से, विसरल ऑर्गन्स, दैट मीन्स द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियाज है, दे आर नोन एज विसरल ऑर्गन। तो इनमें क्या होते हैं, विसरल ऑर्गन, और वी कैन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। बट बॉडी इज नॉट क्लियरली सेगमेंटेड। हेड एंड मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प ये कैसे होते हैं देखो, बट बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड, ध्यान रखना। सेगमेंट का मतलब जो एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरफ से सेगमेंटेड, क्लियर डिवीजन हो अलग अलग पार्ट में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो अगेन सी दिस हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। वी कैन से सिंपल जनरल, a head like structure here and then another structure known as visceral hump, और इसके लोअर साइड में हमें यहाँ पर सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगा, देयर मस्कुलर फुट। तो यहाँ पर हो गया हमारा हेड, हियर इज द विसरल hump and this lower part is known as muscular foot। अब क्या है कि जो विसरल हम्प है, उस विसरल हम्प में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे मैंने ये कर लिया, एलिमेंट्री कैनाल है, बट यहाँ पर क्या है, देयर इज ए फोल्ड ऑफ ए, वी कैन से लाइक ए स्किन फोल्ड इज देयर। एक कवरिंग है जो कौन सीक्रेट करती है, ये विसरल हम्प सीक्रेट करता है। एंड दिस विसरल हम्प सीक्रेट ए, वी कैन से लेयर और कवरिंग। That layer of covering is known as mantle, is known as a mantle, जो क्या करती है, इसको कवर करती है विसरल ऑर्गन्स को। अब देखो इट इज ए डबल लेयर स्ट्रक्चर है, एक ही इसको कवर ऐसे कर रही है और दूसरा ऊपर ऐसे। अब इसके बीच में क्या रह गया, स्पेस रह गया, गैप रह गया, एंड दिस स्पेस और गैप इज नोन एज मेंटल कैविटी, इज नोन एज मेंटल कैविटी। देखो वापिस देखो, दिस इज आर हम्प पार्ट, हम्प है, हम्प विल सीक्रेट ए, वी कैन से फोल्ड और कवरिंग, दैट इज नोन एज मेंटल। ओके, तो ये होगी मेंटल कैविटी। नाउ इन दिस मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटीज में होते हैं गिल्स, दैट मीन्स गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। बाकी ऑर्गन है इसके अंदर, विसरल हम्प के अंदर, और जो गिल्स है यहां पर रेस्पिरेशन का एंड एक्सक्रीशन का दोनों का काम करता है। बताइए, दिस इज ओनली द जनरल बॉडी प्लान। और इस जो विसरल हम्प है, इसके बाहर ऐसे क्या होगा, सेल होगी। ओके, तो पहले क्या है हमारे पास, सेल, सेल के अंदर क्या है, मेंटल क्लियर है, उसके नीचे दो मेंटल क्लियर है, इन बिटवीन देयर इज ए गैप और स्पेस, दैट इज नोन एज मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में हमारे पास क्या है, गिल्स हैं, और दैट दे हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। इस कवरिंग के नीचे क्या है, आर हम्प है, हम्प में मोस्ट ऑफ ऑर्गन है। ओके,
एंड द लोअर पार्ट इज नॉन एज मस्कुलर फुट, जो किसमें हेल्प करता है मूवमेंट में। अगर हम हेड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टेंटिकल्स, देन माउथ। अब इसमें क्या है, माउथ में एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है दैट इज नॉन एज रेस्पिंग ऑर्गन, दैट इज नॉन एज रास्पिंग ऑर्गन, रास्पिंग ऑर्गन नॉन एज रेड्यूला। क्या होता है, रेड्यूला, एंड द रेड्यूला वर्क्स एज टीथ। किस जैसा काम करता है, टीथ का काम करता है। रास्पिंग का मतलब क्या है, छीलना, काटना, कुछ ऐसा। ओके, तो रास्पिंग ऑर्गन है दैट इज नॉन एज ए रेड्यूला। कहां पर होता है, माउथ में। किसके जैसे काम करता है, टीथ के जैसा काम करता है। ओके, तो हेड रीजन में हमारे पास क्या हो गया, रेड्यूला है, माउथ है, टेंटिकल्स है। विसरल हब में इंटरनल ऑर्गन्स हैं। देन लोअर साइड दिस मस्कुलर फुट। ये फुट जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, दैट मीन सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर है, एंड मस्कुलर है, दैट हेल्प इन द मूवमेंट। एंड देयर इज ए मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। सम अदर ऑर्गन्स आर आल्सो देयर, ओके, बट मेनली गिल्स है। गिल्स किसका काम करते हैं, रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन का काम करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द फाइलम मोलस्का, एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। शेल्ड एनिमल है। शेल्ड कुड बी एक्सो, कुड बी एंडो और एब्सेंट, जैसे ऑक्टोपस में है। ओके, तो जो यहाँ हमने हेड की, विसरल हब की, इनकी बात करी है, दे आर नॉट शोइंग द सेगमेंट्स बिकॉज इन सम एनिमल्स हैं उनमें ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं होते। जैसे हम ऑक्टोपस की बात करें तो दैट मीन्स जो हेड है उसी में सारा पार्ट स्प्रेस होता है, एंड ओनली टेंटिकल्स आर देयर। ओके, तो दैट मीन्स तो क्या हो गया, हेड, विसरल हब में ऑर्गन है, नीचे मस्कुलर फुट है, मूवमेंट के लिए है। ये क्या सिक्रेट करता है, कवरिंग, दैट इज नॉन एज मेंटल। डबल फोल्ड है, उसके बीच में कैविटी है, दैट इज नॉन एज मेंटल कैविटी, और उसमें क्या होते हैं, गिल्स। गिल्स किसका काम करते हैं, रेस्पिरेशन का एंड एक्सक्रीशन का। माउथ में रेड्यूला होते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जो फूड को वी कैन से काटने में, क्रश करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द मोलस्का। नाउ आई एम गिविंग यू वन वर्क, दैट मीन्स ऑल द एग्जांपल्स विद द, वी कैन से, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दिस। होमवर्क है, तो यू हैव टू नोट एग्जांपल्स। कैसे करोगे, बायोलॉजिकल नेम, देन कॉमन नेम, ऑलरेडी गिवन इन बुक, गिवन है बुक में, यू हैव टू डाउनलोड पिक्स और उनको खुद देखना है। ओके, क्या क्या है, 3 एग्जांपल मैंने आपको बताया है। वन इज ऑफ पाइला, ठीक है, एक आप उसका भी ले सकते हो, स्नेल का, पाइला, स्नेल, सेपिया, ऑक्टोपस। ओके, सो वो आपको डाउनलोड करके पिक्स देखेंगे कि कौन कौन सा एग्जांपल है, व्हाट इज द कॉमन नेम एंड व्हाट इज द देयर बायोलॉजिकल नेम, ओनली दैट गिवन इन एनसीईआरटी, उसके अलावा कोई भी नहीं करना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलस्का। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सॉफ्ट एनिमल, और वी कैन से शेल्ड एनिमल। ओके, yes students, after mollusca we have to discuss about echinodermata. As the name indicate, echino means we can say spines, okay, and derma mean skin. That means here we can say the skin with spines. Just we can say make an image of starfish in your mind. So starfish is a member of a echinodermata, that means body is spiny body. Okay, so they are known as echinodermata. If we talk about a habitat, so they are exclusively marine है. And if we talk about symmetry, now here the symmetry is a radial. Symmetry is a radial, not bilateral. But if we talk about larva, bilateral in larva of echinodermata. Why this symmetry is radial? Because body is pentamerous in structure.
Gel is pentamerous in structure. We can see there are different arms. Okay, arms are there. So here they show the radial symmetry, not bilateral. प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर सब में कॉर्डेटा में दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, बट रेडियल सिर्फ किसमें है, एकाइनोडर्मेटा में. ओके, अब देखो तो रेडियल सिमेट्री कहां कहां हुई, सेलेंटेरेटा, देन टिनोफोरा, देन एकाइनोडर्मेटा. इन सब में क्या है, रेडियल है. इन फाइनम फर्स्ट दैट इज पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल है, बाकी सब में कैसी होगी, बाइलेटरल. बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट मीन हियर एकाइनोडर्मेटा जो लार्वा है इसका, लार्वा इज विद बाइलेटरल सिमेट्री. ओके, बात आई समझ में. अब देखो लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री है तो डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट है. फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है. सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, दैट मीन यूनिसेक्सुअल है. नाउ कम टू अदर कैरेक्टर्स. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली है, क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, देन सीलम ट्री होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. नाउ सी हियर in this digestive system, like this is the body of echinoderm, these are the arms, my fingers are the arms, and this is the main body. So there are two surface, one is dorsal surface and other is ventral surface. In case of this, जो ventral surface पे है वहां पर होता है mouth, और जो dorsal surface है वहां पर होता है anus. That means this is the pentamerous body and this is the lower surface, or we can say ventral surface. Here is the mouth and opposite to the mouth, or we can say dorsal side, there is a anus. Okay, so here is a complete, but mouth क्या है, ventral side है, और anus कहां पर है, dorsal side पर है. Okay, here respiratory system is present. Many type of system are there. Mainly क्या है, gills है, mainly gills we can say. If we talk about circulatory system, then here circulatory system is open type. Circulatory system is open type. But if we talk about excretory system, then here excretory system is absent. तो एक तो ये देखना है कि excretory system क्या है, absent है. एक सिमेट्री का कि ये क्या है, रेडियल है. ओके, नाउ वन मोर न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हियर, दैट इज एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ ऑसिकल्स. दैट मीन दिस इज ए कैलकेरियस ऑसिकल. कैलकेरियस मीन कैल्शियम का है, ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइक है, बट ये तो पहले भी आया था. लाइक द सेल ऑफ मोलस्क इज आल्सो कैल्शियम मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. आई फॉरगॉट टू टेल देयर. सो वो सेल भी है, हमने कॉलस में भी पढ़ा था, हमने स्पिक्यूल्स में भी पढ़ा था. ओके, हियर दीज आर द ऑसिकल. ऑसिकल मीन्स स्मॉल बोन. ऑसिकल मीन स्मॉल साइज्ड बोन्स. तो ये से छोटे छोटे, दैट मीन्स पीस लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं एंड दे फॉर्म द एंडोस्केलेटन. तो एक ये करना है, कैलकेरियस ऑसिकल है, दैट इज एंडोस्केलेटन. तो कैलकेरियस ऑसिकल एंडोस्केलेटन. Then excretory system absent, symmetry is radial. Radial mean adult में, bilateral किस में है, larva में है. Now here one more new character is there, that is known as water vascular system. Water vascular system, पहले हमारे पास एक सिस्टम आया था, कैनाल सिस्टम. कैनाल सिस्टम किस में था, पॉरीफेरा में. बट हियर इज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम. तो फंक्शन क्या होगा हेयर वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, सपोज वी हैव टू, वी डोंट नो हाउ टू स्विम, तो हम कैसे करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, उसमें एयर फिल करके फिर उसे तैरते हैं. मैनी टाइम हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. तो दैट मीन्स वो क्या है, वो ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स में जो एयर होती हैं, और यहाँ पर उन एयर के से क्या होगा, वाटर फिल होगा, तो वो वी कैन से हाइड्रोलिक प्रेशर से उसमें मूवमेंट में हेल्प करेगा. ओके, एंड सम अदर फंक्शन आल्सो परफॉर्म, लाइक लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, एंड आल्सो हेल्प इन
रेस्पिरेशन। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे हम। तो वन मोर कैरेक्टर हियर इज ए वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो देखो यहां पर क्या क्या नई चीज आई हमारे पास। सिमेट्री, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, देन एंडोस्केलेटन। ओके, नाउ सी ये है हमारे पास। सो सिमेट्री इज रेडियल है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ वेंट्रल साइड है, एनस डोर्सल साइड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल का है, एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, और एक कैनाल सिस्टम था वो स्पॉन्ज में था, तो उसको उसके साथ रिलेट करना है। ओके